in the previous class we have discussed about drift velocity, and today we will discuss origin of resistance or what is the reason behind resistance. What is the reason behind resistance? So we will discuss this. So resistance. इसका origin मतलब कहाँ से आता है, कैसे आता है, we study how resistance comes into picture, और when there is a flow, इसका आंसर बहुत से मिलेगा. resistance from where, resistance comes and when current flow while conductor हीटर. क्लियर, गर्म हो जाता है ना, कट जाता है, तो क्लियर ये सब पढ़ेंगे. हाउ कैन यू मिनिमाइज और हाउ कैन वी मॉनिटर रेसिस्टेंस. दिस इज टॉपिक, हमने ये सब डील करना. एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑफ resistance, effect of temperature on resistance for conductor, for semiconductor and for insulator. हमने ये भी बताया था कि for conductor if your temperature is increasing, resistance is increasing. For semiconductor temperature increasing, resistance is increasing, and for insulator also temperature is increasing, resistance is decreasing. So we will prove over here how we can relate the resistance and the temperature for different material, for conductor, for semiconductor and for insulator. Clear? So you know if there is conductor and you are connecting this conductor V to battery, and potential difference is V, so current will be I, clear, and current will be I, and drift velocity, the electron will be equal to minus of E by N into tau. Clear, tau, where tau is the relaxation time. So the relaxation time. First let us study the origin of resistance, from where resistance is coming, and then we will study the temperature dependence of resistance, and also material dependence of resistance. Your resistance will depends upon temperature as well as material. तो हमने क्या किया कि for now your material and resistance both are fixed, यानी मटेरियल भी हमने फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया. सॉरी, टेम्परेचर मटेरियल एंड टेम्परेचर मीन्स मटेरियल फिक्स होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, फिक्स होगा. क्लियर? सो दिस इज Vd, which is the velocity of electron, means this is the average velocity of electron, means all electrons are moving with the same velocity inside the conductor when you are applying electric field, and the value will be E by m into tau. Tau is the relaxation time. So this is the constant. So if you are fixing, मैंने बोला था this will depends upon material and this will depends upon temperature. So you are fixing material and temperature. So tau remains fixed. Battery fixed है तो E भी fixed और E by m is fixed, means Vd is constant for a given material and for a given temperature. So Vd is constant for a given material and देखो अब ये कांस्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फिक्स कर दिया and you are fixed the material and temperature, so this will be the velocity and this will be constant. इसका मतलब ये नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है. अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा. दिस इज द एवरेज
यानी कोई इधर भी जा सकता है, कोई इधर भी, कोई इधर भी, कोई इधर भी, लेकिन उनका एवरेज जो होगा वो हमेशा इधर होगा, एवरेज। दिस इज द नॉन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के पास ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज। मान लो कि किसी ने सचिन ने पहले बॉल पे छक्का मारा, दूसरे बॉल पे 0, तीसरे बॉल पे 3 रन मारा, चौथे बॉल पे 2 रन और पांचवें बॉल पे 1 रन और फिर 0, यानी एक ओवर से कितना मारे, 6 और 3 9 9 2 11 11 8 12 रन मारे। तो अब बोलो एवरेज क्या है उसका, यानी कि एक बॉल पर कितना रन बनाया, तो क्या बना 12/2, दैट इज 12/6, दैट इज 2 रन, यानी कि 2 रन हर बॉल पर 2 रन बनाया। दिस इज द नॉट एग्जैक्ट, किस रन पर किसने बॉल पर छक्का मारा, किसी पे 0 बनाया, किसी पे 5, किसी पे 2, क्लियर। लेकिन एवरेज क्या है 2, इसका मतलब कि वो हर बॉल पे 2 रन अगर मारेगा तो उसका 12 रन बन जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, दैट इज द नॉट रियल वैल्यू, क्लियर, दैट इज नॉट रियल वैल्यू। इसका मतलब दिस इज द VD, सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। माना हमने जो कर दिया है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेंपरेचर, क्लियर। सो इफ यू आर फिक्सिंग द टेंपरेचर एंड मटेरियल एंड also electric field, this V velocity of electron will remains constant or all electrons have this velocity. This is the average electron velocity अलग भी हो सकता है, पाथ यानी VD क्या है, VD will be always opposite to the electric field ना, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो VD किधर होगा, इधर होगा, क्लियर। ऐसा भी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी, लेकिन रिजल्टेंट किधर वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी इधर है, किधर है, रिजल्टेंट किधर होगा, हमेशा इधर होगा। 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, एक इधर जा रहा है, 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 तो इनका रिजल्टेंट जो होगा हमेशा इधर ही होगा, क्लियर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो VD is equal to minus of E by M into tau, where tau is the relaxation time and this will depend upon temperature and material. So you are fixing the temperature and material and also fixing the electric field, so VD will remain fixed. So this is the conductor and VD for all electron inside the material or inside the conductor is fixed, clear. So होगा क्या बाबू, मान लो देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से चला तो उसके पास वेलोसिटी कितना होगा। अब यहाँ से चला तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यहाँ से जैसे ही मोशन स्टार्ट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी होगा प्लस एक टी यही होगा ना, यानी कि ड्यूरिंग, यानी यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, और जैसे ही यहाँ कोलाइड करेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, और फिर यहाँ से उठेगा और फिर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा एक्सेलरेशन, फिर क्या होगा, यहाँ से चलेगा और फिर अगले एटम से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले भी कोलिजन होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी कोलिजन हो रहा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कोलिजन। इफ देयर इज ओनली कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ का कोलिजन कौन सा था बाबू, इलास्टिक कोलिजन था। क्या था, कोलिजन वाज ऑफ इलास्टिक टाइप, मींस velocity of the electron is not changing during collision, velocity remains constant. But here if you are applying electric field then motion of electron is accelerated na, if you are applying electric field the motion of electron is accelerated and electron is getting acceleration in between the two successive collision ना, क्लियर। जितना ज्यादा टाइम गैप होगा दो सक्सेसिव कोलिजन में उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, आगे उसके पास में कोई एटम आ गया, क्या करेंगे, उसको कोलाइड करेगा, कोलाइड करने में क्या होगा, दैट विल लूज सम एनर्जी, दैट विल लूज सम वेलोसिटी, क्लियर। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर अलग वेलोसिटी से चलेगा, फिर दो कोलिजन के बीच क्या होगा, वो एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज कंटीन्यूअसली कोलाइडिंग विद एटम कमिंग इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ना, क्लियर। तो ये जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ये जो कोलिजन होगा, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स और आयंस विल बी इनइलास्टिक। मतलब ये है कि द इलेक्ट्रॉन विल लूज सम वेलोसिटी और एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन विल लूज सम वेलोसिटी एंड एनर्जी। If velocity is decreasing, the kinetic energy of electron will decrease. So where that energy is going? According to law of conservation of energy, that energy is converted as heat energy.
जितना एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, दैट विल बी गेन्ड बाय द एटम एज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, एज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. सो चेंज इन के डेल्टा के, चेंज इन के ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन के ऑफ इलेक्ट्रॉन will be taken as heat by atom. क्लियर? तो लिखो एंड विल डिस्कस फर्दर. लिखो इसको. तो ये हो गया बाबू. तो ये क्लियर हुआ. क्लियर? सो रेजिस्टेंस कहां से आएगा बाबू? रेजिस्टेंस कम्स इनटू पिक्चर. सो दिस इज आवर कंडक्टर. This is our conductor, and you know Vd is equal to minus of E by m into tau. Clear? तो so far this is, देखो यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये वेलोसिटी हमने यहाँ कांस्टेंट दिखा दिया, जबकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं. इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडिंग and between the two successive collision velocity of electron is also changing, and also different electrons have different velocity. Clear? But on average their velocity is constant. velocity change हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दो successive collision के बीच में velocity change भी हो रहा है. they have different velocity. clear? clear? so Vd is equal to minus of E by m into tau. This is the velocity of electron, and electrons are colliding with atoms or ions, and they are losing their energy. They are losing their energy. Clear? And that energy, yani change in kinetic energy transformed by heat energy. Change in kinetic energy transfer as heat energy. अब देखो continuously there is a conductor, and you are applying electric field, and these are the electrons, and they are moving in this direction, and they are continuously colliding with the electrons, atoms ना. so they are colliding with atoms and they are losing their kinetic energy. और kinetic energy कहाँ चला जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कहाँ चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? एटम के पास. means when there is electric field, electrons are moving and they are colliding with atom, and they are also losing some energy during collision. means change in kinetic energy is gained by atom as heat energy. क्लियर? अब एक एटम उसको कंटीन्यूअसली हीट मिल रहा है. कंटीन्यूअसली यानी तुम ऑब्जेक्ट हो, तुमको कंटीन्यूअसली हीट मिल रहा है. सो योर टेंपरेचर विल रेज, ना योर टेंपरेचर विल रेज. सो दिस इज द एटम, एंड दिस एटम इज गेटिंग कंटीन्यूअसली एनर्जी. दिस एटम इज गेटिंग कंटीन्यूअसली एनर्जी ड्यू टू कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन. सो क्या होगा? इसको एनर्जी हमेशा मिल रहा है, तो टेंपरेचर ऑफ दिस एटम विल रेज ना. सिमिलरली टेंपरेचर ऑफ दिस एटम इज raise. means there are large number of electrons, there are large number of atoms, there is a collision between large number of electrons and large number of atoms. so large number of electrons is providing thermal energy or heat energy to the large number of atoms. clear? तो सारे atoms को energy मिल रहा है, heat energy, and this material or this conductor is made up by atoms, और atom को energy मिल रहा है, तो energy किसको मिल रहा है? material को मिल रहा है. means kinetic heat energy of atom is increasing, means heat energy of material is increasing. इसका मतलब when there is a current passing through the conductor, एटम में क्या होगा? एनर्जी बढ़ना शुरू होगा. और एटम में मटेरियल का क्या होगा? एनर्जी बढ़ना शुरू होगा. टेंपरेचर क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा, हीट अप होना शुरू होगा. एंड दैट इज कॉल्ड द जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब बात समझ आई क्यों हो रहा? बात समझ आई कि जो करंट जाता है तो मटेरियल क्यों हीट अप हो जाता है. थंब को आप करो अगर क्लियर हुआ ये पॉइंट तो जल्दी बीच में करते रहो थंब. हाँ, मींस एटम एनर्जी टेंपरेचर ऑफ एटम इज continuously increasing. so temperature of the material is continuously increasing. अब देखो 2 घंटा अगर 1 आवर यूज करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कुछ कम होगा. 2 आवर मान लो 1 आवर में क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 2 आवर यूज करोगे क्या होगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा. क्या होगा? और 3 आवर करोगे तो क्या होगा?
60 डिग्री बढ़ते ही जाता है कि नहीं? जैसे बल्ब जला के देखो या लैपटॉप चलाओ या फोन चलाओ, लैपटॉप ऑपरेट करते हो देखते हो किससे हीटअप हो जाता है, या बल्ब जलाते हो कैसे हीटअप हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको यूज में लाओगे तो हीटअप हो जाएगा, जितना देर तक यूज करोगे उतना ज्यादा हीटअप होगा। इसीलिए बोला जाता है कि लैपटॉप को 2-4 घंटे या 10 घंटे के बाद उसको बंद कर देना है। फैन को चलाना है तो 2-4 घंटे 10 घंटे बाद बंद कर देना है। कूलर चला रहे हो उसको भी 2-4 घंटे 10 घंटे बाद बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीटअप होगा, हीटअप होगा टेम्परेचर रेज करेगा। अब कभी हो सकता है क्यों का हो, आउट ऑफ ऑर्डर जाए, खराब हो जाए, क्लियर, मेल्ट भी कर जाए मान लो वायर प्लास्टिक, क्लियर। इन सबसे बचने के लिए ही हम थोड़े टाइम के बाद 10 घंटे 5 घंटे के बाद उसका लिखा रहता है मैक्सिमम टाइम यूज एक टाइम पे, फिर उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है, क्लियर है ये सब चीजें। नाउ सो दिस इज योर ड्रिप वेलोसिटी, क्लियर, एंड यू नो यहां से क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस कैसे तुम्हारा आ रहा है, और रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फुल ऑफ करंट, सो देयर जो इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज मूविंग, सो दैट इज कोलाइडिंग विद द एटम ना। तो क्या होगा, एटम का कोलिजन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द करंट ना, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन को एटम रजिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज रजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इफ यू आर रजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यू आर रजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि रेजिस्टेंस क्या बाबू, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी, टेंडेंसी, और वो कौन कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत? सो व्हाट दिस इज, अब ना हमने ये देख लिया कि आर का ओरिजिन कैसे होता है और फ्रॉम वेयर इट कम्स इनटू पिक्चर, क्लियर। यू नो योर VD डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम एंड दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। सो मींस आर विल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल, सीधी बता दिया था हमने अगली क्लास में, बताया था ना। सो नाउ विल डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आर एंड आल्सो मटेरियल डिपेंडेंस ऑफ आर। कोई दिक्कत? इसको लिखो फिर शुरू करते हैं। ओम्स लॉ आर टू फॉर्म, ओम्स लॉ, क्लियर, देयर आर टू फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म and microscopic form. In macroscopic form V is equal to IR and in microscopic form J is equal to sigma E. Clear? So हमने तो ये प्रूफ किया था, ये पढ़ा था, we have to prove this. अगर इसको करने के बाद ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ R समझ आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो पहले देखो ये होता है, तो देयर इज a conductor and now you are applying potential difference. Clear? So let us assume A is the area cross section, and there are n is the number of free electrons per unit volume, or you may also tell that n is the electron density, n is the electron density, clear, n is the electron density, and let us assume, and also is the V is the potential difference, so E is the electric field strength, so E is the electric field strength, clear, electric field strength, clear. So this is direction of electric field, so VD will be equal to drip velocity of electron will be equal to minus of EE by m into tau, clear, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर VD की तरफ होगा इधर, कोई दिक्कत? So we have to find the value of current, सारा इंफॉर्मेशन है तो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, कोई दिक्कत? So let us consider a cross section area, and current का वैल्यू क्या था, flow of charge per unit time through a given cross section area। करंट का डिफिनेशन क्या होता है, flow of charge per unit time through a given cross sectional area। So this is the cross sectional area, यहां से एक सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा वही क्या होगा, करंट इक्वल होगा। So let us assume in time t, पहले t टाइम में हम देखेंगे, यानी t टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा वो फाइंड कर, t टाइम में कितना चार्ज इस क्रॉस में क्रॉस करेगा, और उन दोनों का रेशियो मिलेगा तो I मिल जाएगा ना, q/t मिल जाएगा ना। तो पहले t टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करेगा उसको देख लो, इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करेगा, करंट इधर जाएगा इधर है, टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना क्रॉस करेगा, तो मान लो टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो कि
टी टाइम में यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ, यानी कि टी टाइम का मतलब इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितना है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वीडी है ना, वीडी है, तो वीडी इंटू अगर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा एल, यानी इतना लेंथ का इलेक्ट्रॉन टी टाइम में इस प्रोसेस को क्या कर देगा, वीडी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, यानी सारे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इतना है, टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, इतना लेंथ का इलेक्ट्रॉन, अगर ये लेंथ अगर वीडी टी लेते हैं तो इतना लेंथ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस क्रॉस सेक्शन को कवर कर देगा, यानी इतना लेंथ का इलेक्ट्रॉन कवर कर जाएगा, यानी इतना वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतना वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, दे विल क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है बाबू, ए है और इसका लेंथ क्या है, वीडी डेल्टा टी, तो एरिया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल इनटू ए ना। अब क्या है कि इतना वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन है, तो इतना वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना क्रॉस करेगा, एल ए इंटू एन ना, इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है, तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस किया, टोटल चार्ज कितना क्रॉस किया बाबू, एल ए एन ई ना, इतना चार्ज क्या हुआ, क्रॉस किया, कोई दिक्कत, अरे वीडियो तो अप्लाई करना पड़ेगा ना यार। अच्छा क्लियर, ये हो गया टोटल चार्ज, इसका मतलब क्या होगा, Q इक्वल टू एल ए एन ई, अब एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बाबू, एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वीडीटी लिख सकते हैं, वीडीटी, और एन वीडीटी ए एन ई, और क्लियर, यहां से क्या होगा, क्यू अपॉन टी लिख सकता है, अरे क्यू का वैल्यू है, दिख रहा है ना बाबू, क्यू का वैल्यू है तुम्हारा वीडीटी ए एन ई, तो क्यू अपॉन टी करोगे तो क्या होगा, वीडी ए एन ई इक्वल टू एन ई ए वीडी लिख सकते हैं इसको, और Q बाई टी क्या होगा, यही आई है ना, तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी, सो दिस इज द करंट थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन और थ्रू ए गिवन कंडक्टर, कोई दिक्कत, सो वी विल यूज दिस I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये कैसे हुआ, क्लियर हुआ, ये कैसे आया, क्लियर हुआ, क्लियर, सो लिखो इसको, फिर आगे करवाता हूँ। So I is equal to N E A V D. And in place of V D you can also write N E A V D के बाद E E by M into tau. यानी कितना हो जाएगा, N E square A E by M into tau, ये भी हो जाएगा I तरीके से, क्लियर। So we will study micro, यानी कि हमको प्रूफ होना चाहिए इक्वल टू सिग्मा E, which is the microscopic form of ओम्स लॉ, यही ओम्स माइक्रोस्कोप फॉर्म में ओम्स लॉ करेंगे तभी टेम्परेचर डिपेंडेंस आएगा, क्योंकि हमको मालूम है V इक्वल टू आई आर एंड V इक्वल टू रो एल अपॉन ए इनटू आई, यही होगा ना, यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं आ रहा, यानी कि माइक्रोस्कोपी डील करोगे तो वहां तुम्हें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्रो से डील करोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस आ जाएगा, कैसे देखो, सो पहले देखिए इक्वल टू सिग्मा ई, तो होगा क्या, इफ दिस इज ए कंडक्टर, इसका लेंथ मान लो एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, तो V इक्वल टू ई एल हो जाएगा, हो जाएगा ये, क्लियर होगा कि नहीं होगा, यानी कि ई एल इक्वल टू आई आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सो ई एल इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत, अब क्या करो कि एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई एल अपॉन ए इक्वल टू आई आर अपॉन ए, कोई दिक्कत है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो, अब क्या करो कि इसको इधर लेके चले जाओ, हाँ इसको क्या करो कि आई अपॉन ए को करंट डेंसिटी बोल सकते हैं अपन, आई अपॉन ए, तो होगा क्या, ई एल अपॉन ए इक्वल टू जे आर, कोई दिक्कत है, गुड। अब क्या करो कि जे के बदले हम लिख सकते हैं ई एल अपॉन ए आर, कोई दिक्कत है तो बोलो, यू नो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आर ए अपॉन एल इक्वल टू रो, कोई दिक्कत है, तो यहाँ क्या होगा, एल अपॉन आर ए इक्वल टू 1 अपॉन रो, कोई दिक्कत है, ये किसके इक्वल होगा, सिग्मा इक्वल हो जाएगा, तो करो ना यार, आ जाएगा ना, जे इक्वल टू, करो यार, यहाँ इंप्लाइज जे इक्वल टू ई अपॉन रो, इनके बदले रो लिख सकते हैं ना वहां से, एंड दैट इज इंप्लाइज जे इक्वल टू सिग्मा ई, बिकॉज 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा,
क्लियर, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी प्रूफ हो गया ना। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर, जल्दी देखो, जल्दी, टाइम नहीं है और भी आगे कराना। A is the length, area is the A, V is the potential difference, you know J is equal to sigma E। चलो वेक्टर फॉर्म में लगा दिया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। J equal to sigma E, and now consider this equation I is equal to NEA VD। let's play with this equation I is equal to NEA VD। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक काम करेंगे, काम ये करेंगे I upon A इक्वल टू NE VD। कोई पाप तो नहीं किया ना मैंने, नहीं किया, तो J इक्वल टू NE VD, कोई पाप नहीं है ना, गुड। अब देखो J इक्वल टू NE और VD इक्वल टू होता है बाबू EE बाई M इंटू टॉ। माइनस में चक्कर मत पढ़ना हर जगह, मैग्नीट्यूड लिखो पहले, तो क्या होगा EE बाई एम इंटू टॉ। कोई दिक्कत है, दिक्कत वाली बात तो बोलो, नहीं। तो एन ई स्क्वायर बाई एम टॉ ई, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। देखो मैं कभी सुंदर सुंदर इतना सही नहीं लिखता, लेकिन आज लिखा। सो नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग, पेपर में लिखोगे ऐसे 1 एंड 2। जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, वो डाल देना यार, वेक्टर फॉर्म में डाल सकते हो तुम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी जे, यहाँ भी देख रहे हो इधर, यहाँ जे तो यहाँ जे, यहाँ ई तो यहाँ ई, तो सिग्मा किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा ना। अरे यार तुम बहुत वो, ये ऐसा कुछ है। और फिर जे इक्वल टू है एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टॉ और ई। तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ जे है, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा ना यार, यानी सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टॉ ना, यही है ना सिग्मा। तो सिग्मा आ गया ये एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, and rho is equal to 1 upon sigma, and that is equal to m square n e square by m into, ये हो गया, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ना यार, बिकॉज यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon sigma ना, या सिग्मा रो, यानी कि अगर सिग्मा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियस घटेगा, और रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ने से सिग्मा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ने से सिग्मा घटेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो कर लेते हैं यार, है कि नहीं, कर लेते हैं। तो ये हो गया, पहले लिखो इसको, फिर बताता हूँ कैसे क्या होगा। कर लिया, करो रेस, चल बेटा देखो, अब अपन पढ़ेंगे, हमको रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ, कहाँ कहाँ कैसे रिजल्ट है, उसके बाद करते हैं। एक तो आजकल इस पे आ रहा है इतना सिस्टम, चलो क्या नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को, छोड़ो, जिसको डीप करना होगा कर लेगा तुम लोगों से। इधर देखो, सो आई इक्वल टू एन ई ए वी, आई इक्वल टू एन ई ए वी, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट, और सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, एंड रेजिस्टिविटी इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ। तो अब हमको ये देखना है कि अगर रेजिस्टिविटी सिग्मा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, या अगर रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन हमको प्रूव करना है, यानी बेसिकली वी विल स्टडी द टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ R and material dependence of R. In fact, we will study conductivity dependence of R and conductivity dependence of material. यानी कि सिग्मा का डिपेंडेंस देख लेंगे तो रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली यही रिलेटेड है ना। अरे R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो रो के मतलब ये वाला लिख दोगे ना
अब यहाँ तो आ जाएगा रेजिस्टेंस वाला फॉर्म, यानी रेजिस्टेंस बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। क्लियर। सो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे सिंक कंडक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर, कंडक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सो एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिक्स कर दिया, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे वीडी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे करंट डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे वीडी भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग फेजेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस अलग बता दिया था, नाउ वी आर स्टडी टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड मटेरियल डिपेंडेंस। सो ये सिग्मा, ये क्या है, ये एन ई और एम दे आर फिक्स, दे आर कांस्टेंट, मींस सिग्मा इज डायरेक्ट, क्लियर, नहीं सॉरी, सिग्मा विल डिपेंड्स अपॉन एन नंबर डेंसिटी, किसी जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स में होता है क्या होगा कंडक्टिविटी होगा, एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन टॉ रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर, एंड टॉ डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड temperature, and this also depends upon material and temperature, दोनों मटेरियल और टेम्परेचर डिपेंड करेंगे, तो सिग्मा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो हम लोग को तीन केसेस स्टडी करना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्लियर। तो मैं इधर करा रहा हूं, ठीक है, जल्दी लिखो, ये लिखना क्या हो ही गया था। सो देखो फॉर कंडक्टर, योर एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान से, योर एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घटाने से या बढ़ाने से नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फिक्स्ड, यानी ये टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा और एन क्या होगा बढ़ जाएगा। मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है, मींस फॉर कंडक्टर योर एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, हम मटेरियल पर डिपेंड करेगा, कॉपर आयरन गोल्ड किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब कंडक्टर की बात करो तो सिग्मा क्या है, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम, तो कंडक्टर के केस में क्या है, ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो मटेरियल अगर फिक्स कर दिया हमने तो इनफैक्ट यो टॉ इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू टॉ ना, टॉ पर डिपेंड करेगा ना कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में क्या होगा टॉ पर डिपेंड करेगा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे मटेरियल का, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो टॉ क्या होगा बाबू, घटता है, क्या होता है टॉ घटता है, तो सिग्मा क्या होगा घटेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। यू मे आस्क क्वेश्चन व्हाई यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो टॉ इज डिक्रीजिंग, यू मे आस्क क्वेश्चन, नहीं पूछोगे मैं बता देता हूं, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी, लेकिन अब मुझे करना पड़ रहा है। सो यहाँ बुलाना चाहिए, एक्सक्यूज मी सर कैन एक्सप्लेन दिस व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजिंग द रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग, यहाँ नहीं, यहाँ तो शांत बैठे हो जिंदा लाश बने है कि नहीं। so टॉ इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, उनका वेलोसिटी क्या होगा कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ज्यादा क्या होगा एक्सेलरेटेड होगा ना मोशन, क्लियर। तो अब ये पहले ये बता आ रही बात समझ, मान लो कि एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ से कोलाइड किया, इनके बीच का टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं ना, तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो जितना ज्यादा वीडी बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा आई होगा ना, आई इक्वल टू एन ई वीडी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ कैसे घट रहा है उसको देखना है, तो होगा क्या, मान लो कि थर्मल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, v इज इक्वल टू e बाय m इनटू टॉ, है कि नहीं। अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ाते हो, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका क्या बढ़ेगा, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा। अब थर्मल वेलोसिटी आर रैंडम्स ना, दे हैव रैंडम डायरेक्शन, तो मान लो थर्मल वेलोसिटी तुमने टेम्परेचर दे दिया, बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो उसका थर्मल वेलोसिटी क्या होगा बढ़ गया, यानी रैंडमनेस क्या हो गया बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, यानी कि वेलोसिटी बढ़ा, उसका वेलोसिटी तो बढ़ा, थर्मल एनर्जी देने से टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ा, तो उसका डायरेक्शन क्या है बाबू फिक्स नहीं है। तो कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कि पहले इधर जा रहा था और उसका वेलोसिटी क्या था स्लो था, अब इधर जा रहा है फास्ट वेलोसिटी से जा रहा है, क्लियर। या कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो पहले कम वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो v = u + at है ना,
ये वाला किधर है, v = u + at है, तो u का डायरेक्शन क्या है, ये रैंडम डायरेक्शन है और ये क्या है, इधर डायरेक्शन है ना at वाला। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये रैंडम वाला जो कंपोनेंट है वो बढ़ रहा है, इस पे इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, इधर या इधर या इधर बढ़ेगा ज्यादा, यानी इसका कंपोनेंट बढ़ेगा, ये रैंडमनेस है, रैंडमनेस है, यानी कि जितना ये बढ़ेगा उतना जल्दी जल्दी उल्टा सीधा कोलिजन करेगा ना यार, और जितना ज्यादा कोलिजन करेगा उतना कम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम होगा, उतना जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा तो ये बढ़ेगा और ये क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि गैप क्या होगा, कम होगा, टाइम लैग क्या होगा, कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। आ रही है बात समझ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रैंडम वेलोसिटी बढ़ जाता है और इनिशियल वेलोसिटी बढ़ जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन रैंडम होता है, कहीं भी जा सकता है। ये वेलोसिटी और रिजल्टेंट है दोनों का, इनिशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट, क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रैंडम वाला इनिशियल वाला बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ रहा है तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या होगा, उसका वीडी घट जाएगा, या ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो सिग्मा घट जाएगा। आर ये बात समझ। तो फॉर कंडक्टर if you are increasing the temperature, relaxation time will decrease because thermal velocity of electron increases and collision increases, collision time decreases, कोई दिक्कत, that's why conductivity decreases। and also n is independent of temperature, temperature बढ़ने से ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और जनरेट होंगे, कंडक्टर केस में ऐसा नहीं होता। but for semiconductor क्लियर, ये हो गया सेमीकंडक्टर। फॉर सेमीकंडक्टर दिख रहा है, ये इधर लिख देता हूं, but for semiconductor, चलो जल्दी से लिख लो, तो जल्दी से लिखो, तो करंट कंडक्टर है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी। डोंट बी पैनिक, मैं फोटो भेज दूंगा। देखो अब क्या है कि सिग्मा इक्वल टू n e² tau upon m। so for insulator semiconductor n depends upon temperature and also tau depends upon temperature। इसमें n डिपेंड करेगा टेम्परेचर से, because if there is a semiconductor or if there is a insulator and if you are increasing the temperature, bond starts breaking, एक बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा और वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, क्लियर। if you are increasing the temperature, increase the temperature, n is increasing because bonds start breaking, कोई दिक्कत, बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो बॉन्ड टूट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम अगेन है, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज ऑब्वियस करेगा, क्लियर। मींस इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग। अब देखो क्या होगा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n and sigma is directly proportional to tau। so if you are increasing the temperature, n is increasing but tau is decreasing। सिग्मा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, सिग्मा डिपेंड कर रहा है n पे भी और tau पे भी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है, क्लियर। तो कंबाइन करो तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इनटू tau ना। तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है, ये वाला घट रहा है, तो सिग्मा क्या होगा, रिजल्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा। तो होगा क्या कि अगर ये वाला फास्ट रेट से बढ़ रहा है, ये वाला क्या होगा, स्लो रेट से घट रहा है, तो नेट सिग्मा क्या होगा, फिर भी बढ़ेगा ना। इसका मतलब है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, n इज इंक्रीजिंग एंड tau इज डिक्रीजिंग, तो n का जो इंक्रीमेंट है वो tau से क्या है, ज्यादा है, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, फिर भी सिग्मा का ज्यादा होगा। और यही होता है इफ फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग बट रिलेक्सेशन टाइम इज डिक्रीजिंग, बट change in or increment in electron density is very larger than decrement in the relaxation time। that's why overall there will be overall increment in the sigma। so if you are increasing the temperature for conductor or insulator, sigma will increase, clear। तो ये है चीजें लिख लो, क्लियर लिख लोगे ना आप सब चीजें। तो ये बाबू ये कंप्लीट हो गया और अगली क्लास में अपन देखते हैं, आई थिंक रेजिस्टेंस में पढ़ना है, देख लेंगे।
क्लियर। तो अप टू नाउ क्लियर हो गया ये सारा चीज। तो कोई पूछता है तो क्लियर थी, मतलब समझ लो कितना पढ़ा दिया, तुम बुक पढ़ो समझ आ जाएगा। क्लियर। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर आगे। चलो बाय।